Hello everyone. So this video is not going to be more than of 15 to 20 minutes. So in the last video we completed till here the Constituent Assembly, all the women of the in the Constituent Assembly, and in this video we are going to just discuss the members specific to the Madhya Pradesh, because we are of course studying for the Madhya Pradesh Public Service Commission. So we are going to just focus on them अच्छे से डिटेल में, राइट. नाउ सबसे पहले इज द राम. आई ऑलरेडी हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंट पॉइंट सो दैट ज़्यादा हमें टाइम ना लगे. सो वी आर जस्ट गोइंग टू जस्ट स्टडी द हाईलाइटेड पोर्शन. सो राम मनोहर लोहिया, sorry why I'm saying Ram Manohar Lohia. Ram Manohar Sinha, he is the very first one, and he was from Jabalpur, and he designed the preamble of the constitution, and along with the preamble, design of the preamble, he also made 10 illustrations in different parts of the constitution. So he is like solely devoted for his work in the preamble and the 10 different parts of the constitution, and he did not accept any remuneration for his work. He did not wanted it. And then comes HV Kamath. He is from Hoshangabad, and he got the option of taking oath in name of God included in the oath format for ministers. So basically it's not important, but this is important. So he was from Hoshangabad. H you can remember. Ram Manohar Lohia from Jabalpur. Just remember the places अच्छे से. Hari Singh Gaur from Sagar. This is very important. इनके base इनके ही name में we have Sagar की university, and like he donated all of his property to for this establishment of this Sagar University, and he proposed for making Sagar as the capital of the India, and he advocated the establishment of the Supreme Court in India, and gifted the Civil Marriage Act to Indians. So he was the one who gifted the Civil Marriage Act to Indians. H.V. Kamath was from Hoshangabad. He cleared the British ICS examination in 1933, and he also met Subhash Chandra Bose. So it's very important to remember in the Tripuri session. Tripuri session was the session which happened in 1939. इसके बाद ही जो फॉरवर्ड ब्लॉक था वो आता है, इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी. सो या फॉरवर्ड ब्लॉक आता है, राइट. नाउ कम्स द मास्टर लाल सिंह सिंसवर. ही वॉज द ओनली पर्सन फ्रॉम भोपाल स्टेट in the Constituent Assembly, and he ran weekly newspaper named Praja Pukar, and all of his newspapers are very important for during the freedom movement. Praja Pukar, and later published a newspaper Kisan and Path Pradarshak. So Praja Pukar and Kishan and Path Pradarshak are the newspapers he wrote, raising voices for untouchability removal and women's awakening. Then Pandit Ravi Shankar Shukla, he was like the first chief minister of undivided Madhya Pradesh. He is like the first chief minister of undivided Madhya Pradesh. कौन? रवि शंकर शुक्ल, ये अच्छे से याद रखना है आपको. एंड बॉर्न ऑन 2 August 1877 इन सागर, एंड ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर हिंदी इन द असेंबली एंड persisted till end. Finally, Article 343 declared Hindi in the Devanagari script and as the official language of the Union. ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. कौन सा आर्टिकल वो करता है? आर्टिकल 343. ये चाहते थे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हिंदी में लिखा जाए. एंड ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश, एंड मिनिस्टर थे अवॉइड किए गए 1995 to 1996 के बीच में. आउटस्टैंडिंग मिनिस्टर अवार्ड इन्हें मिलता है पंडित रविशंकर शुक्ल को. पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ में भी है इनके नेम में. इनका जो स्टैचू है वो पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में है. सेठ गोविंद दास जो हैं ये चाहते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कम्प्लीटली हिंदी में लिखा जाए. ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड बिरार रीजन से. इनको पद्म भूषण मिला था 1961 में. 1961 में पद्म भूषण मिला था. एंड इन्होंने बहुत सारी नोवेल्स लिखी थी. ऑथर नोवेल्स लाइक चंपावती, कृष्णलता एंड सोमलता नाम के नोवेल्स इन्होंने लिखी थी. मध्य प्रदेश फ्रॉम जबलपुर 1947 to 1974 के बीच में, बीइंग द सीनियर मोस्ट मेंबर, सर्व्ड प्रोटेम स्पीकर
ऑफ द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लोकसभा के ये प्रोटेम स्पीकर बने थे। फिर फ्रैंक एंथोनी जो हैं ये जबलपुर से थे एंड ही वॉज प्रोमिनेंट लीडर, एंग्लो इंडियन लीडर थे एंड प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Nominated Anglo-Indian representatives continued to be elected to Parliament until his death on 3 December 1993 में, and member of the advisory committee and subcommittee on minorities, authored the Britain's betrayal in India, the story of the Anglo-Indian community। अवधेश प्रताप सिंह रिवर स्टेट के कैप्टन एंड मेजर थे, रिवर स्टेट फोर्स के चीफ मिनिस्टर थे विंध्य प्रदेश के। रीवा यूनिवर्सिटी अवधेश प्रताप सिंह नेम्ड आफ्टर हिम। विनायक सीताराम सरवटे, इनके नाम पे बस स्टैंड भी है इंदौर में, सो द पीपल हु लिव इन इंदौर मस्ट बी नोइंग हिम। इंदौर इन 1884 में मराठी फ्रीडम फाइटर थे, पॉलिटिकल लीडर एंड राइटर थे। अवार्ड किया गया इन्हें पद्म भूषण, थर्ड लार्जेस्ट सिविलियन ऑनर था 1966 में। एंड देन ब्रिज नारायण इलेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्वालियर स्टेट। कुसुम कांत जैन, ये झाबुआ रतलाम वाला जो थे प्रिंसली स्टेट था वहाँ से यंगेस्ट वो थे, तो कुसुम कांत जैन, से कुसुम जैन तो फूल को बोलते हैं, यंगेस्ट जो होता है। हसरत मोहानी ने भूमि भानुनाथ का पिटारा बोला है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, एंड यहाँ पे कुछ उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, सो यू कैन लीव इट, बस इतना याद रखना। भानुमति का पिटारा हसरत मोहानी ने बोला है। दैन दामोदर स्वरूप सेठ डज नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर कंट्री, इन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रिप्रेजेंट करता। सेठ गोविंद दास जो है वो चाहते थे कि हिंदी में वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जनगण मनगण, क्योंकि किंग जॉर्ज के सामने गाया था, तो इसलिए चाहते थे वंदे मातरम को नेशनल एंथम बनाना। काउ स्लॉटर को इन्होंने बोला कि क्राइम आपको बताना चाहिए, सेठ गोविंद दास। एंड नेचुरल जो हिंदी शुड बी नेशनल लैंग्वेज एंड देवनागरी दी नेशनल स्क्रिप्ट इन्होंने सजेस्ट किया था। नेशनल फ्लैग का नेम सुदर्शन देना चाहिए, सेठ गोविंद दास ने सजेस्ट किया था। सो गोविंद दास हैं कृष्ण जी से रिलेटेड, हिंदी को ये प्रमोट करें, तो हिंदी को प्रमोट किया, लाइक हिंदी हिंदू गॉड हैं कृष्ण जी, तो इसलिए हम ऐसे याद कर सकते हैं कि सेठ गोविंद दास जी हैं वो कृष्ण जी के दास। तो ही वांटेड कि कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में लिखा जाए एंड नेशनल लैंग्वेज हिंदी हो एंड नेशनल स्क्रिप्ट देवनागरी हो। और जनगण मनगण जो है किंग जॉर्ज के सामने, जॉर्ज 5 के सामने आया गया था, इसलिए वंदे मातरम नेशनल एंथम हो। काउ स्लॉटर जो है उनसे डिक्लेयर किया गया क्राइम, ऐसे उन्होंने उनके अकॉर्डिंग। लोकनाथ मिश्रा ड्राफ्ट करते कॉन्स्टिट्यूशन को। स्लेविश सरेंडर टू द वेस्ट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट बायस सुपरफ्लूटीज, ऐसे ही बताते हैं। सो या दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड टुडे 6 दिसंबर 2025 एंड आज का हमने अपना सेकेंड टारगेट भी